سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ سرکاری دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سینٹ الیکشن کی تیاریوں اور صوبے کے سیاسی و انتظامی امور سے متعلق بھی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان صحت کے شعبے میں حکومت پنجاب کے اقدامات بارے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور متعلقہ حکام ان کو بریف کریں گے۔ عمران خان کو خوراک کے شعبے میں حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر خوراک علیم خان وزیر اعظم کو متعدد امور اور گندم کے امدادی قیمت بارے تفصیلی طور پر آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم آج جیلانی پارک بھی جائیں گے، جہاں انہیں ماحولیاتی آلودگی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علی طارق، نمائندہ ٹی وی ٹوڈے، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ جی علی طارق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر جو ہے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں انہوں نے سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج جیلانی پارک میں فورسٹ جو بنایا گیا ہے اس کا بھی وزیر اعظم نے آج افتتاح کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے اوپر بھی اجلاس میں صدارت کریں گے، اور جتنے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب اور ساتھ جو ان کی ٹیم ہے وہ ان کو بریف کریں گے کہ کیسے مہنگائی کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ لیکن جو مین چیز ہے وزیر اعظم کی پنجاب میں جو آنے کا جو مقصد ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہی ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں۔ کل ہی خرم لغاری صاحب نے جو ہے پی ٹی آئی جو ہے چھوڑ دی ہے، ناراض ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی حکمت عملی طے کی جائے گی، اور سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھرپور طریقے سے لڑنے کی حکمت عملی بنائی جائے گی، اور جو ناراض ہیں ان کو منایا جائے گا۔ اور نون لیگ کے بھی کچھ اراکین ہیں جن کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب پچھلے کئی ماہ سے جو ہے رابطے میں ہیں، تو ان کو بھی اب کھیلنے کا وقت آ گیا ہے کہ ان کو بھی سینٹ الیکشن میں استعمال کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کے ایک روزہ دورہ لاہور کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ الحمدللہ گریڈ 1 سے 19 تک کے وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ الحمدللہ گریڈ 1 سے 19 تک کے وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ہماری ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شیخ رشید نے کہا کہ پمس کے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں، جبکہ ٹی ایل پی کے ساتھ بھی معاملہ طے پا گیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ پی ڈی ایم نے پوری کوشش کی وہ سرکاری ملازمین کو مشتعل کر سکے، پی ڈی ایم اس میں بری طرح ناکام رہی۔ وزیر اعظم نے نالا لئی کے لیے بھی 70 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ نالا لئی منصوبے کو 2 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل گریڈ 1 سے لے کے 19 تک مرکزی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی ہماری ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ پمز کے ڈاکٹروں کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گیا ہے، اور یہ حکومت جو ہے وہ ناموس رسالت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ پی ڈی ایم نے پوری کوشش کی کہ وہ سرکاری ملازمین کو مشتعل کر سکیں، جس میں وہ بری طرح ناکام رہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے ہاتھ ان کی چور بازاری اور لوٹ مار کی وجہ سے بندھے ہوئے تھے، اور کل وزیر اعظم نے نالا لئی کے لیے بھی 70 ارب روپے جاری کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں، تاکہ 2 سال کے اندر نالا لئی کو مکمل کیا جائے، جو راول پنڈی کا نقشہ بدل دے گا، اور اس کے لیے فوری طور پر۔ اب آپ کو بتائیں کہ سابق ٹی جی آئی ایس آئی اسد درانی کیس میں نیا موڑ آ گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس پر مزید سماعت سے معذرت کر لی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ کیس کا سارا پس منظر جانتا ہوں، فیصلہ بھی لکھنے کے مرحلے میں تھا، میں یہ کیس چیف جسٹس اطہر من اللہ کو بھیج رہا ہوں۔ یہ افسوسناک ہے کہ لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں جو بتانا نہیں چاہتا۔ چیف جسٹس ہی اس کیس میں پر سماعت کے لیے نئے بینچز کا فیصلہ کریں
रहेंगे। गुज़श्ता समाअत पर वज़ारत दिफा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करवाए गए तहरीरी जवाब में कहा गया था कि असद दुरानी 2008 में दुश्मन अनासिर बिलखसूस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राब्तों में रहे। उनका नाम रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ECL में शामिल किया गया। असद दुरानी ने इंडियन खुफिया इदारे रॉ के साबिक सरबराह AS दलित के साथ मिलकर एक किताब लिखी है जिसमें एहसास मवाद भी शामिल है। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में 4 जवान शहीद हो गए जबकि 4 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों का मुकाबला हुआ। इस दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी फायरिंग के नतीजे में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले जवानों में लांस नाइक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, सिपाही अजीज और सिपाही अनीसुर रहमान शामिल हैं। ISPR का बताना है कि फोर्सेज की जानिब से इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। बुलेटिन में बात करेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि दिफाए वतन और मुल्क में क़याम अमन के अजीम मकासद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर कौम के काबिल फख्र सबूत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि जनूबी वज़ीरिस्तान में 4 फौजी जवानों की शहादत पर बेहद अफसोस है। शोहदा के अहले खाना के सब्रो इस्तिक़ाल और जुरायत को सलाम। आखिरी सांसें लेते दहशतगर्दों की वाक़यात को ख़त्म करके दम लेंगे। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कामयाब कार्रवाई करते हुए तखरीब कारी का मंसूबाना काम बना दिया। तहसील नवा की चार्मिंग में पाक अफगानिस्तान सरहद के करीब खुफिया इदारों के इतला पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों किलो खतरनाक बारूदी मवाद और इसलाह बरामद कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि काल अदम तंजीम ने असलहा सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना था। नाज़रीन, कोरोना वायरस से 33 अफराद जाँ बहक हो गए जिसके बाद अमवात की तादाद 12,218 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,60,363 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,270 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में 2,52,719, खैबर पख्तूनख्वा में 69,164, गिलगित बल्तिस्तान में 4,929, इस्लामाबाद में 42,000, आज़ाद कश्मीर में 9,359 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 83,60,823 अफराद के टेस्ट भी किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35,280 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,18,164 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आज से आगाज हो गया। नामजदगी फॉर्म हफ्ते के रोज भी जमा कराए जा सकेंगे। मुल्क भर में सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग 3 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 14 फरवरी को जारी होगी। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 15 से 16 फरवरी होगी। कागजात नामजदगी पर एप्लीकेशन 17 से 18 फरवरी दायर हो सकेगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 22 फरवरी तक वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चारों सूबाई असम्बली और पार्लियामेंट हाउस को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा। 48 नशिस्तों पर इंतखाबात कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान भी मुकर्रर कर दिए। इस्लामाबाद के लिए स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट जफर इकबाल हुसैन रिटर्निंग अफसर मुकर्रर, जबकि पंजाब के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान, सिंध के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान, खैबर पख्तूनख्वा के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफ उल्लाह और बलोचिस्तान के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद राजिक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे।
अब आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात के लिए पीटीआई के उम्मीदवारों के नाम फाइनल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मजीद नशिस्तों के ऐलान बाद में किए जाएंगे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उम्मीदवारों का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। हुक्मरान जमात की जानिब से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद इस्लामाबाद से, फैसल वाडा सिंध टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्लाह ओबड़ो और बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर का नाम फाइनल किया गया है। पंजाब से सैफुल्लाह नयाजी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद सानिया निश्तर और फरजाना शामिल हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बाकी नशिस्तों पर ऐलान बाद में होगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों ने मईशत का जनाजा निकालकर पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जाती मफादात की खातिर इदारों को तबाह किया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि माजी में पॉलिसीज बनाते हुए अवामी तरजीहात और कौमी मफादात को फरामोश किया गया। गुज़श्ता हुकूमतों की गलत पॉलिसीज के बायस कौम का बच्चा बच्चा मकरूज है। निज़ाम सरायत खराबियों को दुरुस्त करने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। जाती मफादात के लिए नहीं बल्कि अवाम की फलाह और मुल्क के मफाद के लिए फैसले कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अच्छा वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। मुखालिफिन की हर साजिश पूरी तरह नाकाम रही है। नया पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा और मुखालिफिन हमेशा की तरह पीछे रह जाएंगे। तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट पर पीडीएम क्यों घबरा रही है। ओपन बैलेट इंतखाबात से अपोजिशन को नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अपने बयान में कहा कि कबल अज वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश रखने वाले 2023 तक सब्र करें। शफाफ सेनेट इंतखाबात से जमहूरियत और पार्लियामेंट मजीद मजबूत होगी। इमरान खान का कौम से वादा है वो करप्शन को जड़ों से खत्म करेंगे। तारीख गवाह है, वजीर आजम इमरान खान जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। चौधरी सरवर का कहना था कि हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम जगह जबकि अपोजिशन कमजोर करना चाहती है। कोई मुआशरा करप्शन के खात्मे और शफाफियत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमती एजेंडा आम आदमी को मजबूत बनाना और हर शोबे में रिलीफ देना है। कौमी इदारों को तनकीद का निशाना बनाने वालों को माफ नहीं करेगी। हुकूमती मुखालिफिन को सियासी और जाती नहीं कौमी मफादात को तरजीह देने चाहिए। अवाम को हुकूमत जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मुत्तहिद खड़े हैं। बुलेटिन में बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात 2018 एमपीएस की वीडियो के मामले पर 3 रुकनी कमेटी बना दी है। एमपीएस की वीडियो के मामले पर तश्कील दी जाने वाली कमेटी में फवाद चौधरी, शीरी मजारी और शहजाद अकबर शामिल हैं। कमेटी वीडियो से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट 1 माह में वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी और इंतखाबी कवानीन के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई से मुतालिक तजावीज़ भी देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं सेनेटर फैसल जावेद खान कहते हैं कि पहले भी वीडियोज आती रही हैं, ये कोई नई वीडियोज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा कि गुज़श्ता सेनेट के इंतखाबात में हमारे 20 अरकान बिके जिन्हें फारिग किया गया था। वीडियो की इंक्वायरी कराई जाएगी, जल्द हकाइक सामने आएंगे। सेनेट इलेक्शन में हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसलिए चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो। सीक्रेट बैल्टिंग में हमेशा से वोट बिकता रहा है। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी में शामिल वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि इस मामले पर परवेज खटक और असद कैसर के खिलाफ तहकीकात नहीं होंगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि जिन लोगों ने पैसे लेकर जमीर बेचा और फिर झूठ बोला, उनके इल्जामात की कोई हैसियत नहीं। उन्होंने कहा कि परवेज खटक पर पैसे बांटने के इल्जामात की कोई हैसियत नहीं, उनके और असद कैसर के खिलाफ तहकीकात नहीं होंगी। फवाद चौधरी का कहना था कि तहकीकाती कमेटी सिर्फ उस बात का तयन करेगी कि पैसे के लेन देन का असल फायदा किसको हुआ और कौन सेनेट में गया।
पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आज से आगाज हो गया। तकरीब से खिताब करते हुए पाक बहरिया के सरबरा अमजद खान नियाजी का कहना था कि पाक बहरिया खित्ते में इस्तेहकाम के लिए हमा वक्त कोशा है। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आज से बाकायदा आगाज हो गया। कसीरुल कौमी बहरी मश्क 11 से 16 फरवरी तक कराची में मुनक्कद की जा रही है। मश्क का बाकायदा आगाज शरीक ममालिक की परचम कुशाई की तकरीब से हुआ। मशकों में 45 ममालिक के नुमाइंदगान बहरी असासे मुबस्सिरीन और सीनियर अफसरान के साथ शरीक हैं। कमांडर पाकिस्तान फ्लैट रियर एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, जबकि 7 दोस्त ममालिक के मुअज़्ज़ज़ मेहमान बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि कोरोना वायरस के तनाजुर में कसीर तादाद में ममालिक की शिरकत पाक बहरिया का बड़ा कारनामा है। मश्क का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम और मुश्तरका कार्रवाई का सलाहियतों में इजाफा है। तकरीब से खिताब करते हुए पाक बहरिया के सरबराह अमजद खान नियाजी का कहना था कि पाक बहरिया ने मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए मुतादिद इक़दाम भी किए हैं। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया हमा वक्त कोशा है। उन्होंने कहा कि मश्क में शरीक तमाम मुल्कों का खैर मकदम करते हैं। मश्क अमन पसंद मुल्कों को यकजा होने का एक पैगाम है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने NA 75 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेते हुए मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हुकूमती ओहदा रखते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा क्यों लिया। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में इंतखाबी उम्मीदवार के हमरा मौजूदगी को इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने उस्मान डार को ज़ाती हैसियत में डस्का के मुकामी ऑफिस पेश होने की भी हदायत कर दी। वाज़ेह रहे कि NA 75 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम खत्मी मरहले में दाखिल हो गई। मुस्लिम लीग नून और PTI के अरकान इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। अब आपको बताएं कि जमाते इस्लामी लाहौर का महंगाई के सुनामी के खिलाफ शदीद एहतजाज, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। अमीर जमाते इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद कहते हैं तब्दीली सरकार तबाही सरकार बन गई है। 19 फरवरी को भी मुल्तान रोड पर भरपूर मुजाहिरा करेंगे। जमात इस्लामी गरबी लाहौर के ज़ेर एहतमाम बिजली की कीमत में इजाफे और महंगाई, बेरोजगारी, सफाई की नाक़िस सूरत हाल के खिलाफ मंसूरा डिग्री कॉलेज चौक पर मुजाहिरा। मुजाहरे की क़यादत अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद, मजहर जेलानी, राशिद चिश्ती ने की। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद का मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहना था कि जमात इस्लामी शहर लाहौर को लावारिस नहीं छोड़ेगी। जमात इस्लामी इस मुल्क की हकीकी क़यादत है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा करके IMF को राजी कर रही है। तब्दीली सरकार अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अवाम पर महंगाई मुसल्लत कर रही है। महंगाई के वार लगातार, बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी तब्दीली सरकार पर फट पड़े। कहा आवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर किया जा रहा है। इस हवाले से हमें मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मायदा वहीद। जी मायदा, बिजली बम पर शहरियों का क्या रद्द अमल है, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज बिजली की कीमतों में फिर से एक दफ़ा इजाफा कर दिया गया है। पहले आटा दाल चीनी महंगी थी, लेकिन आज बिजली जो है वो फिर से एक दफ़ा महंगी कर दी गई है। बिजली की फ़ी यूनिट को जो है वो 3 रुपये महंगा कर दिया गया है। गरीब आवाम का कहना था पहले आटा दाल चीनी ये सब उनके घर के लिए जो ज़रूरी अशिया थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, लेकिन अब बिलों में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को आ रहा है, क्योंकि बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जब बिजली महंगी होती है तो हर चीज़ महंगी होती है। जी तो दूसरी जानिब लाहौर में स्मोक का राज, शहरियों की आंखों में जलन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 तक जा पहुंचा। माहिरीन का कहना है कि कम से कम घरों से निकला जाए। मज़ीद जानते हैं अली तारिक से। जी अली तारिक, बताइएगा। जी, इस वक्त लाहौर के मौसम की बात की जाए तो स्मोक का राज जो है वो बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 337 तक जा पहुंचा है। लाहौर की जो मेन शाहराएँ हैं वहाँ पे भी स्मोक का राज है। दमे के जो मरीज़ हैं उनको बाहर निकलने से मना किया गया है। आम शहरी भी जो हैं वो भी ये शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि उनकी आँखों में जलन हो रही है। खांसी जो है वो इस फ़ज़ा में आलूदगी की वजह से दिखाई दे रही है। माहिरीन से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा लाहौर में है, इस वजह से ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ गया है।
इस वक्त मैं आपको ये भी बताऊं कि जो लाहौर आलूदगी के शहरों में सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त आ चुका है। हमारी डॉक्टर से भी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि इस मौसम में गर्म मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तर्जमान मोटरवे का भी यही कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से आप परहेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है घरों में रह जाए, बाहर निकलना इस वक्त मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, ये गाड़ियां काजी अहमद के इलाके दीनो मशीन कौमी शाहरा पर कारें ले जाने वाला ट्रॉलर उलट गया है, जिसके बाद ये कारें तबाह हो गई। काजी अहमद मोटरवे पुलिस के मुताबिक कौमी शाहरा दीनो मशीन स्टॉप पर कराची से लाहौर जाने वाला ट्रॉलर उलट गया। ट्रॉलर में लोड 1 दर्जन इलेक्ट्रिक कारें जो कि कोरिया से इंपोर्ट की गई थी और पाकिस्तान में पहली बार ये कारें मुतारिफ करवाई जानी थी, लेकिन ये कार्स आवाम तक पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार होकर तबाह हो गई हैं। तबाह होने वाली एक कार की कीमत 90 लाख बताई जाती है और ये चार्जिंग कार पहली बार पाकिस्तान आई थी। अब आपको बताएं कि ठट्टा में झरक के करीब पहाड़ी इलाके में कोयले की कान बैठ गई, जिसके नतीजे में 4 मेहनत कश जाँ बहक हो गए। झरक के करीब मेटिंग के पहाड़ी इलाके में लीज होल्डर उमर खान की कोयले की कान अचानक बैठ गई, जिसके नतीजे में कान में काम करने वाले सवात के रिहायशी 2 मजदूर महबूब अली और गुल वाजिद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 मजदूर दाद खान और फकीर गुल जख्मी हो गए, जिन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया गया, ताहम वो भी दम तोड़ गए। दूसरी जानिब वाक़या का चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिस लेते हुए डीसी ठट्टा से रिपोर्ट तलब कर ली। डीसी ठट्टा की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कान को सील करा दिया। मैयतों को वुरसा आबाई इलाके ले गए। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं कि इमाम काबा डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने कहा है कि दुनिया में 2 जगह जहां कोरोना वायरस नहीं पहुंच पाया, खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सिंपोजियम से खिताब करते हुए इमाम काबा ने कहा कि जिन मकामात में ये वबा अल्लाह के हुक्म से दाखिल ही नहीं हो पाई, उनमें खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है। सऊदी हुकूमत ने वायरस से बचाव के लिए मिसाली इक़दाम किए, जिसके बायस मुल्क में ये वबा दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में इस कदर तेजी से नहीं फैली। इमाम काबा ने उम्रे के लिए आने वाले ज़ायरीन पर जोर दिया कि वो सऊदी हुकूमत के हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल करें ताकि इस वबा से महफूज रह सकें। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।